السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 156 سے 156۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا نبلونکم، اس میں جو اس کی ترکیب ہے لفظ کی، وہ ہے وا، یعنی کہ اور، لا لام تاکید کا ہے، جس کا مطلب ہے لازمی طور پر ضرور، نبلونا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی فعل کے شروع میں نون آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بولنے والا جمع ہے، یعنی کہ ایک سے زیادہ افراد ہیں، یا وہ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو نبلوننا کا مطلب ہے کہ ہم آزمائیں گے۔ یہ جو لفظ ہے وہ بلا سے نکلا ہے، اور بلا ہم اپنی اردو زبان میں تو کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت ہے، تو ہوتی وہ مصیبت ہی ہے، لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے۔ جیسے کہتے ہیں ابتلا میں آ گیا بندہ، یا بلا اس کو پڑ گئی، تو بلا کا مطلب ہے کہ وہ آزمایا گیا کسی تکلیف کے ساتھ۔ تو ولا نبل ونہ، اور اس کا مطلب ہوا کہ اور ضرور ہم آزمائیں گے کم تم کو، تو ولا نبل ونہ کم۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر یہ ایک فرد کے لیے ہوتا تو ہوتا ولا نبل ونہ کا، ہم تم کو، ایک شخص کو، ایک فرد کو آزمائیں گے۔ تو یہاں پہ ہے ولا نبل ونہ کم، اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، بے شیء، اس میں بے اور شے یہ دو چیزیں ہیں۔ بے کا مطلب آپ کو پتا ہے ساتھ، شے کا مطلب ہوتا ہے کچھ۔ بے شیء یعنی اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہم چاہیں گے، بے شیء جو بھی ہم ارادہ کریں۔ تو بے شیء ساتھ کچھ، من الخوف خوف میں سے، یعنی کبھی تو آزمائش ہوگی خوف کے ساتھ، والجوع اور بھوک سے، یعنی کبھی تو انسان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، اور وہ اس وقت آزمایا جاتا ہے کہ یہ خوف میں کیسے رد عمل کا اظہار کرتا ہے، اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے یا نہیں، یا جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی بے ایمانی کرتا ہے، اور شریروں کے ساتھ مل کر شرارت پہ آمادہ ہو جاتا ہے تاکہ وہ اس خوف سے بچ جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور لازمی طور پر ہم تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ ساتھ کچھ، من الخوف خوف سے، خوف میں سے، یعنی خوف میں سے کچھ ہوگا، من کا آپ کو مطلب پتا ہے آؤٹ آف یا فرام، والجوع اور بھوک سے۔ کبھی مومنوں کے اوپر خوف بھی طاری ہوتا ہے، کبھی مومنوں کے اوپر بھوک بھی آتی ہے، تو وہ آزمائش ہوتی ہے۔ وَنَقْسِمْ یہاں پہ آنا چاہیے تھا جو آ رہے ہیں نا یہ سائن، تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا وَنَقْسِمْ، سوری، نقسم، اور نقص یا کمی، ونقسم، اور اردو میں بھی وہ کہتے ہیں فلاں چیز میں کوئی نقص پڑ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے، اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی۔ ونقسم اور کمی سے، یعنی ایک تو ہو گیا خوف، اور ایک ہو گیا بھوک، اور تیسری چیز ہو گئی کمی۔ ونقسم من الاموال، اموال میں سے، جیسے اوپر تھا نا من الخوف ہے، یہ دیکھیں یہ من الخوف ہے، والجوع، ونقسم من الاموال، اور
अम्वाल में भी कमी वाक़ हो सकती है, उससे भी अल्लाह ताला आजमाएगा। वल अनफो से, और जानों में से भी, कभी कोई बीमार हो गया, कभी कोई फौत हो गया। वस समरात, और फलों में से भी। तो ये 5 चीज़ें अल्लाह ताला ने बताई हैं। एक खौफ, एक भूख यानी जू, और नक्सिम मिनल अम्वाल यानी कि माल में कमी हो जाए, और जानों में कमी हो जाए या नुकसान हो जाए, और फलों में से भी। ये 5 चीज़ें हैं जिनमें अल्लाह ताला आजमाता है लोगों को, और फरमाया कि मैं ज़रूर आजमाऊंगा। यानी ईमान लाने का नतीजा ये नहीं होता कि कभी किसी मोमिन को दुख ही ना पहुंचे। दुख पहुंच सकते हैं, लेकिन वह बशर साबिरीन, और बशारत दे सब्र वालों को। बशर, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि अगर किसी फेल में जो दूसरा हर्फ है उसमें नीचे जेर हो, जैसे इसका स्टैंडर्ड होता है फ़ाइल या इफ़अल होता है, तो ये बशिर है। बशिर का मतलब है और बशारत दे। बशिर और बशारत दे अस्साबिरीन, सब्र करने वालों को। सब्र करने वाले वो हैं जो ऐसे हालात में भी ये नहीं कहते कि हमें क्या दिया खुदा ने, या हमें मुसलमान होकर क्या मिला, या हमें हम जीत ने क्या दिया। बल्कि बाज़ औक़ात जो कमज़ोर ईमान वाले लोग होते हैं, वो ऐसे फसादात के वक्त एमजे से फिर जाते हैं, छोड़ देते हैं, अपनी जान के खौफ से, अपने अम्वाल के खौफ से, और भूख के खौफ से। उनके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है कि हम ज़रूर तुमको आजमाएंगे, खौफ के ज़रिए, भूख के ज़रिए। अम्वाल में कमी हो सकती है, जानों में नुकसान हो सकता है, और फलों में नुकसान हो सकता है। लेकिन वबशरी साबिरी, और बिशारत दे सब्र करने वालों को। अगली आयत में है अल्लज़ीना, वो उन लोगों को, इज़ा, जब, असाबत हम, तो असाबत यानी वो पहुंचती है, हम उनको, असाबत हम मुसीबत, मुसीबत। अभी जो मुसीबत लफ्ज़ है, चूंकि ये मुअन्नस है, इसलिए यहाँ पे है असाबत। अगर ये मुसीबत का लफ्ज़ मुज़क्कर होता तो फिर यह होता असाबा, फिर ते नहीं आती आखिर में। तो असाबत, पहुंची, हम उनको, जो अल्लाजीना है ना, अल्लाजीना, बशरी साबिरीना, और बिशारत सब्र करने वालों को, ये जमा का सीगा है, साबिर नहीं है, साबिदीन है। अल्लाजीना, उन लोगों को, इज़ा, जब, असाबत हम, पहुंचती है उनको, मुसीबतुन, मुसीबत, कालू, तो वो कहते हैं। अब कालू का जो लफ्ज़ है वो असल में माजी है। उन्होंने कहा, कालू, उन्होंने कहा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका तर्जमा जो है वो हाल में किया जाएगा या मुस्तकबिल में किया जाएगा। इज़ा असाबत मुसीबत, जब उनको मुसीबत पहुंचती है, कालू, तो वो कहते हैं, इन्ना, यकीनन हम, लिल्लाहि, अल्लाह ही के हैं। बाज़ लोग इसका तर्जुमा करते हैं हम अल्लाह से, अल्लाह की तरफ से आए हैं, हालांकि इसका लफ्ज़ी मतलब ये है, इन्ना, यकीनन हम। और ये इन्ना मैंने आपको बताया था, इन और ना का मरकब है, जमा है। इन्ना, नून के ऊपर शद्दा का मतलब है, दो नून है यहाँ पे। इन्ना, यकीनन हम, लिल्लाहि, लिल्लाहि का मतलब है ले अल्लाह। ये जो अल्फाज हैं वो है ले और अल्लाह। तो दो है, ले अल्लाह है, अल्लाह ही के लिए है। वह इन्ना, और हम, इलाई है, या थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गई है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलाई है, और उसी की तरफ राजिऊन, लौटने वाले हैं। व इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम अल्लाह ही के लिए हैं, और हम यकीनन उसी की तरफ इलैहि है। तो ये आपको पता है कि ये जो मैंने आपको बताया था, ये है इला यानी तरफ, और है
इला, इलाई है, ये बन जाएगा इलाई है। इला और है की जमा, है का मतलब हिम। तो इलाई है राजू। ठीक है जी। को खत्म कर देते हैं। उलाए का, उलाए का जमा है जालिका की। जालिका एक के लिए इस्तेमाल होता है, उलाए का ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये बनेगा उलाए का, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, अलैहिम, ये अलैहिम जो है आपको पता है, अला और हिम की जमा है। अला का मतलब ऊपर, हिम का मतलब वो, तो इसका होगा ऊपर उनके, ये वो लोग हैं ऊपर उनके, सलावातुन, यानी दुआएं और रहमतें हैं, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। इसको ऐसे करेंगे, तरफ से उनके रब की, मिन रब्बिहिम। ठीक है। व रहमतिन, और रहमत, और रहमत। व उलाइका, और ये वो लोग हैं, हम जो हैं, अल मुहतदून, हदायत याफ्ता, हदायत पाने वाले लोग। ठीक है जी। तो एक दफा फिर पढ़ लेते हैं इसको। वला नबलवन्नकुम, और जरूर हम आजमाएंगे तुमको, बेशैइन, साथ कुछ, मिनल खौफे, खौफ से, खौफ में से, वल जुए, और भूख में से, व नक्सिम, और नक्स या कमी, कमी से, मिनल अम्वाले, मालों में से जो माल कमाए हैं, वल अनफो से, और जानों से, व समरात, और फलों से। यानी इन तमाम चीज़ों में कमी हो सकती है, खौफ आ सकता है, खौफ और भूख बढ़ता है, और माल और जाने और जो फल हैं वो कम होते हैं। तो खौफ के बढ़ने से, भूख के बढ़ने से अल्लाह ताला आजमाता है, और मालों में कमी से, और जानों में कमी से, और फलों में कमी से भी आजमाता है। वबश्शिर साबिरीना, और बिशारत दे सब्र करने वालों को, अल्लजीना, वो लोग जो, इज़ा, जब, असाबत हम, पहुंचती है उनको, या उन पर आती है, मुसीबतुन, मुसीबत। मुसीबत का मतलब होता है पहुंचने वाली, जो चीज़ पहुंचती है ना उसको मुसीबत कहते हैं। हमारे तो और इसका इस्तेमाल है, लेकिन अरबी जुबान में मुसीबत का मतलब है जो पहुंच जाए। कालू, वो कहते हैं, इन्ना, ये हम यकीनन, या यकीनन हम, लिल्लाहि, अल्लाह ही के हैं, व इन्ना, और यकीनन हम, इलैहि, उसी की तरफ, राजिऊन, लौटने वाले। उलाइका, ये वो लोग हैं, और उलाइका देखें, जालिका की जमा है, जालिका भी हो सकता है, जाका भी हो सकता है, दोनों इस्तेमाल होते हैं। उलाइका, ये वो लोग हैं, अलैहिम, ऊपर उनके, सलावातुन, रहमतें हैं, मिर रब्बिहिम, तरफ से उनके रब की, व रहमतुन, और रहमत, व उलाइका, और ये वो लोग हैं, हुमुल मुहतदून, वो हैं, और ये जो हैं, अल मुहतदून, हदायत याफ्ता लोग। ठीक है जी। तो ये आज हमने तीन आयत पढ़ी हैं, छोटी छोटी थी तो हमने तीन पढ़ ली हैं, 156, 157 और 158। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।